بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بڑھتے مزید اہم خبروں کی جانب۔ حیدرآباد و اطراف سمیت تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بارش کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کے اطراف جلپلی میونسپلٹی میں بھی بارش سے کئی علاقے متاثر ہوئے، جس کا مجلس کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری نے معائنہ کیا۔ رنگاریڈی ضلع کے جلپلی میونسپلٹی میں آنے والے کئی علاقوں میں پچھلے دنوں ہو رہی بارش سے کافی نقصان پہنچا۔ بارش کا پانی بھر گیا تھا اور گھروں میں داخل ہو گیا تھا۔ بارش سے متاثرہ ایسے علاقوں کا آج MIM کے جنرل سیکریٹری اور MLA سید احمد پاشا قادری نے رنگاریڈی ڈسٹرکٹ جوائنٹ کلیکٹر پرتیک جین کے ہمراہ دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل سے واقف حاصل کی۔ بتا دیں کہ جلپلی میں سب سے زیادہ عثمان نگر اور امرین کالونیز متاثرہ ہوئے ہیں، جہاں MIM کے علاقائی قائدین نے لوگوں کو گھر تک امداد پہنچائی تھی۔ بہرحال میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری اور جوائنٹ کلیکٹر پرتیک جین نے مزید جانکاری دی۔ یہ شاہین نگر علاقے میں آج سے 4 دن پہلے جو بارش ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بہت سارے آبادیوں میں پانی گھروں میں گھس گیا، خصوصاً عثمان نگر، رائل کالونی، اس کے اطراف اکناف کے کالونیوں میں، اور یہاں کے لوگوں کو مجلس کی طرف سے چیئرمین صاحب کھانے کا انتظام کرے۔ تقریباً کمر برابر پانی تھا، پانی میں اتر کے گھروں میں جا کے کھانے کا سامان تقسیم کرے، پھر شادی خانوں میں ان کے قیام کا تام کا انتظام کرے۔ میرا 3-4 دن سے چیئرمین صاحب ان کے ساتھ پورے کارپوریٹرز امدادی کاموں میں مصروف تھے۔ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر کل کلکٹر رنگاریڈی سے میں بات کیا جا کے ان کو توجہ دلائی۔ ویسے RDO اور MRO کے ذریعے وہ بھی باخبر تھے یہاں کے کاموں سے، ان کو درخواست کیا کہ آپ آ کے دورہ کریں۔ چنانچہ وہ جوائنٹ کلیکٹر صاحب کو یہاں پہ بھیجے، وہ تفصیل سے عثمان نگر دیگر مقامات کا دورہ کرے۔ تو ہماری تجویز یہ ہے کہ جس کالونیوں میں پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے، آؤٹ لیٹ کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر آؤٹ لیٹ کے لیے اسٹیمیٹ بنائیں، گورنمنٹ سے منظوری حاصل کر کے یہاں کے لوگوں کو راحت پہنچائیں گے۔ تاریخی چار مینار کے قریب سڑک پر کاروبار کرنے والوں کو اب حکومت کی جانب سے ایک مخصوص کارڈ بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں MIM کارپوریٹر نے سڑک پر کاروبار کرنے والوں سے بات کی۔ حیدرآباد کی تاریخی چار مینار کے دامن میں ایک بڑی تعداد سڑک پر کاروبار کرنے والوں کی ہے۔ اب ان کاروباریوں کو خصوصی کارڈ بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ آج پتھر گٹی کارپوریٹر سید سہیل قادری اور GHMC پروجیکٹ آفیسر علیم الدین نے چار مینار کے قریب فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کی اور انہوں نے یہ کارڈز بنوانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے بنوائے جا رہے یہ کارڈز لازمی طور پر بنوائے تاکہ کاروبار کرنے میں آسانی ہو۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے GHMC پروجیکٹ آفیسر علیم الدین نے مزید جانکاری دی۔ میرا نام علیم احمد ہے، میں GHMC میں UCD سیکشن میں پروجیکٹ آفیسر ہوں۔ یہ اسٹریٹ وینڈر کا سبجیکٹ ہمارے کو آتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹریٹ وینڈرز کے لیے کارڈ بنانا ضروری ہے۔ جو بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اسٹریٹس پہ، اور لوگوں کو کمپلسری کارڈ ہے نا، کارڈ نہیں رہنے سے وہ لوگ کو اسٹریٹس پہ اگر جو چیکنگ میں ہے تو نکال دیتے، وہ لوگ کو کرنے نہیں دیتے۔ اور ایک بات کیا ہے وہ تو سینٹرل گورنمنٹ سے بھی ابھی اسکیم ہے PM-SV سویا ندھی بول کے، آتما نربھر ندھی، اس میں جو ہے 10,000 روپے لون بھی اویل کر سکتے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ پورے جو بھی اسٹریٹ وینڈرز ہے وہ لوگ ہمارے آفس کو ربط کر کے اپلائی کر لے کے کارڈز بھی لے سکتے اور لون کے لیے بھی اپلائی کر سکتے۔ ڈائریکٹ آئیے ہمارے پاس، فری میں ہم بنا کے دے رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چارجز۔ تلنگانہ کے شہر بودھن میں مجلس پارٹی کے اراکین بلدیہ نے آج حیدرآباد کے معین آباد میں پیش آئے نربھیا کیس کے خلاف احتجاج درج کیا۔ حبیب خان قدیر سابق نائب صدر نشین بلدیہ و کونسلر نے ریاستی وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہوئے TRS پارٹی لیڈر کے ملزم مدھو یادو کو سخت سے سخت سزا دینے، جبکہ متاثرہ لڑکی کے افراد خاندان والوں میں سے ایک فرد کو سرکاری ملازمت اور 50 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر RDO راجیشور کو تحریری یادداشت بھی حوالے کیا گیا۔
मासूम बच्ची का रेप हुआ है, मधु नामी शख्स से जो ना रेप करके उसका कत्ल किया है। बड़े अफसोस के साथ जो ना हम तमाम एमएम के काउंसलर्स और एमएम के लीडर्स आरडीओ ऑफिस में जो ना तशरीफ लाए हैं, लाकर आरडीओ साहब को मेमोरेंडम पेश किए हैं ताकि उसको इनकाउंटर कराए और जो ना उसका या इनकाउंटर अगर नहीं हो सका तो फांसी दे। ये जो ना एमएम पार्टी की जानिब से, तमाम काउंसलर की जानिब से तेलंगाना हुकूमत से जो ना अपील है। और वो फैमिली में किसी एक को जो ना गवर्नमेंट जॉब दे और कम से कम एक 50 लाख रुपए का जो ना मुआवजा दे। ये हम तमाम बोधन की शहरानी की जानिब से, बोधन के काउंसलर्स की जानिब से, एमआईएम पार्टी की जानिब से डिमांड। तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत की जानिब से लाए गए नए एलआरएस सिस्टम के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज जारी है। ऐसे में तेलंगाना के शहर बोधन में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। तेलंगाना सरकार के नए एलआरएस एक्ट के खिलाफ शहर बोधन के बीजेपी टाउन ने प्रोटेस्ट किया। इस सिलसिले में बोधन आरडीओ राजेश्वर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया, जिसमें एलआरएस सिस्टम के कानून को बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया। बाद अज़ां सदर बीजेपी ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत रियल इस्टेट के तजारत में मसरूफ़ हो चुकी है। आवाम की फलाह व बहबूद दम भरने वाले रियासती सीएम गरीब आवाम के साथ एलआरएस जैसे पेचीदा कानून के ज़रिए घोटाला कर रहे हैं। इस मौके पर रामराज, साबिक़ रुकन बल्दिया, कमलाकर व दीगर पार्टी अरकान व कारकुन शामिल थे। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी ने भी आरडीओ ऑफिस पहुंचकर मुल्क के दोनों ऐवानों में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा ज़राई बिल के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि कांग्रेस टाउन सदर मोहिउद्दीन पाशा ने सख्त अल्फाज में तेलंगाना हुकूमत को एलआरएस सिस्टम के बर्खास्ती का मुतालबा करते हुए आवाम को राहत देने की बात कही। ఈరోజు బోధన పట్టణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీఓ గారి కార్యాలయం ముందు ధర్నాకు నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ 6 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు పరిపాలన నడుస్తుందో, ఆయన మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కాదు, మెక్డౌల్ కంపెనీ ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నాడు. ఆయన రాష్ట్ర ప్రజల మధ్యతరగతి పేద బడు బలహీన వర్గాలకు ఏదైనా న్యాయం చేయకుండా ఈ కరెంటు బిల్లుల విషయంలో ఎక్కడ లేని, దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేని ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజల మీద మోపి వాళ్ళ కల్వకుంట్ల ఇంటికి ఒక లబ్ధి చేకూరే విధంగా, రాజ్యాధికారం చేసుకునే విధంగా ఈరోజు మనం రాష్ట్రంలో కనబడుతోంది. రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ మీకోసం ముందుకు వస్తూ ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇట్లాంటి వైఖరి, మొండి వైఖరి రచించకుంటే ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించే వరకు కూడా మేము ఊరుకునేవని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. तेलंगाना के शहर जगतियाल के एमएलए संजय कुमार की क़यादत में हल्क़े जगतियाल के किसानों ने SKNR डिग्री कॉलेज से नए बस स्टैंड चौराहा तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली। करीब 1000 ट्रैक्टर्स के साथ नए रेवेन्यू एक्ट के निफाज की खुशी का इजहार किया गया। बाद टीआरएस कायदी ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर चेयरपर्सन दावा वसंता, म्यूनसिपल चेयरपर्सन बुग्गा श्रवानी, ज़राअत मार्केट कमेटी के चेयरमैन दामोदर राव, डिप्टी चेयरमैन MA मोहसिन और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने आज जहांगीर पीरा दरगाह पहुंचकर चादर गुल पेश की और साथ ही फातिहा ख्वानी में भी शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा टीआरएस अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने जहांगीर पीरा दरगाह आने का मकसद और इस बारे में मजीद जानकारी दी। 2 साल पहले इलेक्शन के पहले जो है हमारे हल्के के लोग, हमारे साथी, हम पूरे जो न्याज बनाए, न्याज करे थे। वो न्याज में जो है मुझे भी इनवाइट किए थे। 2 साल पहले जो है बाबा के दरगाह को मैं भी आ चुका था। अब एक मन्नत लेके गया था यहाँ से। आने वाले 2 साल के बाद के इलेक्शन में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी जो है फिर हुकूमत आके, साथ ही साथ हम भी जो है MLA फिर जीते तो यहाँ पर आके जो है न्याज करेंगे बोल के बाबा से मन्नत लेके गया था। वो मन्नत जो है पूरा करने के लिए जो है हमारे कुछ लोगों के साथ आज आके जहांगीर बाबा का मन्नत पूरा करने के जा रहे हैं।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत में वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पास किए गए नए बिल पर इजहार तशक्कुर के तौर पर आज उलमा, मशाइखीन और अइम्मा के एक वफ़द ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मोहम्मद सलीम के ज़रिए CM KCR का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर दुआ भी की। जितने भी लोग जमा हुए इसको भी इसका अजर अजीम अता फरमा और हमारी रियासत के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR साहब को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और इनके जो जो कामों की कोशिशें कर रहे हैं खुदा इनके काम में आसानी अता फरमा, खुदा हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि नूर अर्शी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। हैदराबाद में कई मशहूर शख्सियात के व्हाट्सएप हैक कर लिए गए। इमरजेंसी मैसेज के नाम से बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पैगामात मौसूल हुए रहे हैं। इसके बाद 6 डिजिट का कोड इमरजेंसी हेल्प के नाम से भेजा जा रहा है और OTP नंबर भेजने की दरख्वास्त की जा रही है। OTP नंबर भेजने पर व्हाट्सएप क्रैश हो रहा है। मुतासर अफराद में से बहुत से मशहूर शख्सियात और डॉक्टर हैं। पुलिस का मशवरा है कि कोई भी व्हाट्सएप पर किसी को भी कोड मैसेज ना भेजे। कोड भेजने पर हैकर्स व्हाट्सएप चैट हैक कर रहे हैं। तेलंगाना के ज़िला संगारेड्डी में भरोसा सेंटर का SP के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। SP चंद्रशेखर रेड्डी के हाथों मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की मदद के लिए नई तामीर शुदा भरोसा सेंटर हॉल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर SP ने कहा कि शादीशुदा ख़वातीन को हरासा और ख़वातीन की स्मगलिंग और घरेलू तशद्दुद के अलावा दीगर मसाइल की यकसोई के लिए क़ानूनी इमदाद फराहम करने की गर्ज से इस भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। भरोसा सेंटर में अरकान P दिव्या लक्ष्मी, R महेश्वरी, श्रीलता व दीगर काम करेंगे। इस मौके पर एडिशनल SP सोजना, DSP श्रीधर रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। विकाराबाद टाउन में शोहर की जानिब से बीवी के अगवा वाले वाक़े में नया मोड़ आया है। पुलिस ने दोनों को सिद्दीपेट से गिरफ्तार कर लिया है। आज विकाराबाद SP नारायणा ने दोनों मियाँ बीवी दीपिका और खलील उर्फ अखिल को मीडिया के रूबरू पेश किया और इस पूरे मामले की तफसीलात बताई। पुलिस को इस जोड़े ने बताया कि उन दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन घर वालों से तंग आकर दोनों अपनी मर्जी से एक साथ चले गए थे। బలవంతంగా కారులోన ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తీసుకెళ్లారని మనకు కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. దాని మీద వికారాబాద్ పోలీసుల్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం, అతను ఎవరు తీసుకెళ్లారామను ఏ కార్లో వెళ్ళిన దాని గురించి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి వికారాబాద్ డివిజన్స్ మొత్తం కూడా వేరు టీములుగా డివైడ్ అయిపోయి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆ కారును బట్టి ఆ కారులో తీసుకుపోయిన అతను ఆమె హస్బెండ్ అని మనం ఒక నిర్ధారణకు రావడం జరిగింది. ఆ యొక్క దారిలో నా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉండగా ఈరోజు మనకు ఒక సమాచారం తెలిసింది. ఆ ఇద్దరు కూడా ఒక ప్లేస్లో ఉన్నారని తెలియగా వికారాబాద్ CI అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిను మనం స్టేట్మెంట్ అడగడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి చెప్పిన దాన్ని బట్టి 2015 ఆగస్టులోన ఆ అమ్మాయికి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నది. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఆమెను ఇంటికి పిలిపించుకొని ఆ అమ్మాయిను భర్తకు దూరంగా పెట్టారని, అప్పటి నుంచి కూడా ఆ అమ్మాయి అతనితో కలవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉండింది, కానీ ఎప్పుడు కూడా వీలు కాలేదు. ఈ మధ్యలోన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఆ అమ్మాయితో విడాకుల కేసు కూడా వేయించారని ఆ అమ్మాయి అంటుంది. దానికి వ్యతిరేకంగా ఆ అబ్బాయి కూడా ఈ అమ్మాయిని నాకు కాపురానికి పంపడం లేదు అనేలాగా అతను కూడా కోర్టులో కేసు వేసినట్టు తెలిసింది. ఆ 2 కేసులు కూడా కోర్టులో నడుస్తున్నాయి. ఆ నడుస్తున్నప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఏదో రకంగా ఇద్దరు కూడా ఒకరి మధ్యలో ఒక ఆ సంబంధాలను కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి కూడా ఇద్దరు కూడా ఎదురెదురు కలుసుకోలేదు. 2018లో మాత్రం అబ్బాయి మీద కేసు వేసింది, నాకు విడాకులు కావాలంటే. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి స్టేట్మెంట్ ప్రకారం అయితే తల్లిదండ్రుల పోవడం వల్లనే నేను కేసు వేసినానని చెప్తుంది అమ్మాయి. जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम मंडल के कोहिडा वेल्ले सड़क के पास एक खातून की नाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब हुई। पुलिस ने बताया कि खातून की शनाख्त 60 साला मैसम्मा के तौर पर की गई है, जो गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता थी और इससे मुताल्लिक़ शिकायत वनस्थलीपुरम में दर्ज कराई गई थी। पुलिस को शुबा है कि कातिलों ने इस खातून के पैरों में मौजूद चांदी के कड़ों के लिए उसका कत्ल किसी मुकाम पर किया और फिर यहाँ लाकर फेंक दिया। कातिलों ने खातून की शनाख्त ना हो इसके लिए उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए
मुअत्तिलों की तलाश शुरू कर दी है। डुंडीगल पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सारारम कट्टा मैसमा तालाब में एक शख्स की नाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नाश मिलने की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने नाश को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुल्क में ख़वातीन के तईं बरते जाने वाले वहशियाना सलूक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए तेलंगाना के ज़िला वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब नज़र ने अपनी हिदायत पर एक सबक आमोज़ फिल्म बनाई है, जिसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी। बैनर तले बनाई है जिसका नाम है इदी कला कादू, यानी कि एक ख्वाब नहीं। बेशक ये ख्वाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो समाज में चल रहा है हिंदुस्तान का माहौल, इस माहौल के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है, एक जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है ये फिल्म। इस फिल्म में बेशक बेहतरीन अदाकारों ने काम किया है, जैसे शफ़ी बनर्जी, वैभव सूर्या, पूजिता जुन्नलगड्डा, दानिका सिंह, माधवी, डॉक्टर श्रीजा, जमा, माही महेंद्रा, बादशाह और बहुत से सितारों ने काम किया है। और ये फिल्म उन जालिमों के ख़िलाफ़ है जो जिनकी निगाहों में 6 माह की लड़की से 100 साल की औरत तक सिर्फ उन्हें औरतपन ही दिखाई देता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले जो माहौल हिंदुस्तान का था उससे भी बदतर हो चुका है। ऐसे हालात में मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि ऐसी मैं फिल्में बनाता रहूँ और लोगों के दिलों को छूता रहूँ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। कोरोना वैक्सीन के लिए हैदराबाद की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है पूरी दुनिया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई का ख्याल, भारत बायोटेक कंपनी का किया मुआयना, साइंसदानों से की बात। तेलंगाना के दुब्बक असेंबली हलके में 3 नवंबर को होगा बाई इलेक्शन। 10 नवंबर को वोटों की गिनती। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल। ईवीएम के जरिए करवाए जाएं तेलंगाना में इलेक्शन, बीजेपी का मुतालबा। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से बीजेपी डेलीगेशन ने की मुलाकात। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की बी टीम पर दी वजाहत। उत्तर प्रदेश में रेप वाकयात पर भी की बात। तेलंगाना की रिवायती बदकमा त्योहार की 16 तारीख से होगी शुरुआत। केटीआर ने बदकमा साड़ियों की तकसीम के बारे में की बात। साड़ियों की तैयारियों का लिया जायजा। और तेलंगाना के शहर बोधन में बीजेपी और कांग्रेस ने नए एलआरएस एक्ट के खिलाफ किया जबरदस्त मुजाहरा। एलआरएस को फौरी वापस लेने का दोनों पार्टियों ने किया पुरजोर मुतालबा। पीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर पीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए पीबीएन चैनल।